Factories are 1948. तापरे लिखो aim and objective. Aim and objective. First देखो, it regulates and properly maintains. It regulates and properly maintains safe working conditions. Safe working conditions in factories. In factories. Second point, it regulates and properly maintains. Regulate and properly maintains. It regulates and properly maintains various safety, health and welfare activities. Various safety, health and welfare activities in the factory. It also it also regulates and maintains. Working hours. Regulates and maintains. It also regulates and maintains working hours and rest hours of workers and rest hours of workers. Working hours and rest hours of workers, employment of women and young persons, weekly holiday and young persons weekly holiday, etc. So aim and objective of factory act क्या है कि it regulates and properly maintains safe working condition in factory. एक फैक्ट्री में safe working condition कैसे मेंटेन करना है, ये सभी रूल्स ये हमें देता है, ठीक है। उसके बाद it regulates and properly maintains various safety, health and welfare activities. सेफ्टी कैसे मेंटेन होगा, हेल्थ कैसे ठीक रहेगा लोगों का जो कि काम कर रहे हैं, और वेलफेयर फैसिलिटीज उनको कैसे मिलेगा। वेलफेयर फैसिलिटी क्या है? वेलफेयर माने हमारा मेडिकल फैसिलिटी, देन एम्बुलेंस सिस्टम, एक बॉडी का जो रहा हमारा प्रेगनेंट, दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी, ये सभी कैसे मिलेगा, ये सभी भी इस आर्ट में लिखा हुआ है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स एंड प्रॉपर्ली मेंटेन्स वर्किंग आवर्स, कितना घंटा काम होगा, एंड रेस्ट आवर्स ऑफ वर्कर्स, कितने घंटे और कितना टाइम वो लोग रेस्ट लेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वोमेन, एक वोमेन एम्प्लॉयमेंट होगा एक वोमेन का, तो क्या क्या होना चाहिए, और यंग पर्सन वीकली हॉलीडे, कितना हॉलीडे होना चाहिए, ये सभी चीज इसी आर्ट में हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लिखो सेक्शन 2M, सेक्शन 2M अच्छी फैक्ट्री।
फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, फैक्ट्री का डेफिनेशन कौन देखो, सेक्शन 2M, सेक्शन 2M फैक्ट्री। A factory is a premises. A factory is a premises. A factory is a premises. P-R-E-M-I-S-E-S. A factory is a premises wherein 10 or more workers are working. 10 and more workers are working. Workers are working on any day, working on any day of the preceding 12 months. P-R-E-C-E-D-I-N-G. Preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on. A manufacturing process is being carried on. B-E-I-N-G. Is being carried on with the aid of power. A-I-D. Aid of power. Aid of power or is ordinarily so carried on. ताले according to section 2M of Factories Act 1948, factory is a premises wherein 10 or more workers are working. तो फैक्ट्री एक जगह होता है जहाँ पे कि 10 और more people काम कर रहे हैं, 10 और उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और where working on one any day after preceding 12 months, पूरा month 12 months सभी दिन काम हो रहा होगा, और in any part of which a manufacturing process is being carried on, और उसी premises में एक जगह में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या पता है, कुछ मशीनरी, कुछ चीज, कुछ रॉ मटेरियल, इस तरह की कुछ चीज लेके हमें कुछ नया वाला तैयार करना है, ठीक है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो एक चीज कुछ भी हो, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होगा, उसमें है तो पावर की जरिए इलेक्ट्रिसिटी और एनी मीन्स ऑफ पावर की हेल्प में जहाँ पे कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होगा और इस ऑर्डिनरी सो करेगा, और इसी तरह से कुछ प्रोसेस हो रहा होगा उसी जगह को, और उसी प्रेमिसेस को हम क्या बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया? बुझिपाला समझे सुनी बुझिपाला तापरे लिखाओ सेक्शन 2 के सेक्शन को तमे शॉर्ट रे एससीसी भी लिखि पाइबो हला। सेक्शन 2 के एटा हला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेक्शन 2 के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखो, a manufacturing process comprises COMPRISES
following. First point, making, altering, altering, making, altering, preparing, 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 finishing, packaging, 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 oiling, washing, cleaning, breaking off, cleaning, breaking off, breaking off, breaking, breaking off, demolishing, demolishing, or otherwise, stripping, stripping, or adopting any article or substances, with a view to its use, transport, delivery, or disposal. Second point, pumping oil, water, sewage, sewage, or any other substances. Third point, generating, transforming, or transmitting power. Generating, transforming, or transmitting power. Next point, constructing, constructing, repairing, refitting, finishing, or breaking off, breaking off, breaking off, seats or vessels. Seats, seats or vessels, seats or vessels. Next point, preserving,
Preserving, preserving or storing any article, preserving or storing any article in cold storage, in cold storage, in cold storage, COLD, cold storage. So according to section 2K of Factories Act 1948, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सभी जो 5 पॉइंट तुम लोगों ने लिखे, तो ये सभी चीज जहाँ पे हो रहा होगा उसको एक हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है, मेकिंग, अल्टरिंग, मीनिंग पता चला है ना, मीनिंग कौन बोलते हो, मेकिंग, अल्टरिंग, प्रिपेयरिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, ऑयलिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ब्रेकिंग ऑफ, demolishing or otherwise switching or adapting any article or substances with a view to its use, sale, transport, delivery or disposal. किसी चीज को यूज करने के लिए, उसको सेल करने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए और उसको डिस्पोजल करने के लिए हमें ये सभी जो प्रोसेस हम लोग जहाँ पे कर रहे हैं और जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं उसको एक हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद पंपिंग ऑयल, वाटर और सीवेज और ऐसे अदर सब्सटेंसेस, किसी लिक्विड को, ऑयल हो या वाटर हो या किसी भी लिक्विड को जब हम पंपिंग कर रहे हैं और कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे। जैसे कि रिफाइनरी इंडस्ट्री जो होते हैं, रिफाइनरी कंपनी में क्या होता है, कुछ लिक्विड, कुछ ऑयल और कुछ पेट्रोलियम, इस तरह से कुछ चीज वो लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर, पावर जो जनरेट होता है हमारा उड़ीसा में कहाँ होता है, हिराकुद में होता है, ठीक है, हिराकुद में, संबलपुर, तो रेगानी ये बड़े जगह जो होती है हमारा, तो पावर को जो ट्रांसमिट जनरेट करते हैं, कुछ कुछ कंपनी भी होते हैं जैसे कि इन्फा है यहाँ पे उड़ीसा में, तो वो क्या करता है, पावर जनरेट करता है, ठीक है। तो पावर जनरेट करना और उसको ट्रांसमिटिंग करना और ट्रांसफॉर्मिंग करना, ये सभी चीज जहाँ पे भी होता है उसको भी और एक प्रोसेस को हम ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और परफेक्टिंग, रिपेयरिंग, रिपीटिंग, फिनिशिंग और ब्रेकिंग ऑफ शिप और वेसल, किसी शिप और वेसल, शिप का मतलब पता चल रहा है, शिप जहाँ पे तैयार होता है और जहाँ पे उसका कुछ फिटिंग होता है और रिपेयर होता है, इस तरह का काम जहाँ पे होता है तो उसको भी हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। और प्रिजर्विंग और स्टोरिंग यानी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज जो होता है हमारा जो आलू होता है उसको क्या करते हैं, एक मतलब पूरा ईयर में 1 साल और 2 साल में उसको प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसको पूरा साल के लिए रखते हैं, वो कैसे रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तो इसी तरह का कुछ चीज भी जहाँ पे होता है और वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे। दूसरी बात है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम समझ में आया। उसके बाद देखो सेक्शन 2C, चाइल्ड, चाइल्ड, a child is a person, a child is a person who has not completed, a child is a person who has not completed 14 years, 14 years of his age, of his age. Child is a person who has not completed his 14 years of age. जो एक आदमी होता है जो कि 14 ईयर कवर नहीं किया होगा, मतलब 14 ईयर के अंदर जो होते हैं उसको हम चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखो
हाँ adolescent is a person. Common line introduce a child, adult, adolescent or adult. Adolescent is a person who has completed. Adolescent is a person who has completed his 14th years of age but has not completed his 18th year. Adolescent is a person who has completed his 14th years of age but has not completed his 18th year. What? Has not completed his 18th year. 1 age. But has not completed his 18th year. ठीक है, जो आदमी 14 ईयर क्रॉस कर गया होगा लेकिन 18 ईयर क्रॉस नहीं किया होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक एडोलसेंट बोलेंगे। 14 के अंदर हुआ चाइल्ड, उसके बाद आया एडोलसेंट 14 to 18, ठीक है, और उसके बाद आएगा क्या? एडल्ट। सेक्शन 2E सेक्शन 2A एडल्ट। Adult is a person who has completed his कितने 18 years of age. His 18 years of age. तुम लोग अभी क्या हो? चाइल्ड एडल्ट क्या है? एडल्ट। तो एडल्ट क्या होता है? जो जिस आदमी को 18 ईयर्स क्रॉस कर गया होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक एडल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो एडल्ट चाइल्ड और एडल्ट है जिसमें अंदर डिफरेंस क्या है पता चला? ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन में आएगा कि सेक्शन 2B किसके लिए होता है? एक ऑप्शन आएगा चाइल्ड, एडल्ट, एडल्ट, नॉन ऑफ दिस। 2B किसके लिए है? एडल्ट के लिए। चाइल्ड फैक्ट्री में काम कर सकता है? चाइल्ड तो नहीं कर सकता, रूल है हमारा। एडल्ट और तर एक्टिविटीज को बुझिपारला कि व्हाट इज फैक्ट्री, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हु इज द चाइल्ड, हु इज द एडल्ट एंड हु इज द एडल्ट। समझ में आया नहीं? कौन सा? हाँ, सेक्शन 2 के 2A फैक्ट्री, 2 के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, 2 की चाइल्ड, 2B एडल्ट, 2A एडल्ट। रूल भी होता है वेट खाने का, हाँ हाँ, रूल भी होता है, रूल भी है। अभी देखो सेक्शन 2E that is for workers। 2E workers। Workers means a person employed directly, a person employed directly or through any agency, employed directly or through any agency
manufacture. With or without knowledge. With or without knowledge. With or without knowledge of principal employer. With or without knowledge of principal employer. Principal employer, comma, whether for wages, whether for wages, whether for wages or in any manufacturing process, or in any manufacturing process, or in cleaning of, or in cleaning, or in cleaning any part of the machinery or premises, or in cleaning any part of the machinery or premises, comma, or premises used for manufacturing process, used for manufacturing process, or in any kind of work, process, or in any kind of work, Any kind of work incidental to, or in any kind of work incidental to or connected with the, incidental to or connected with the CO2, incidental to or connected with the manufacturing process, or the subject of manufacturing process, or the subject of manufacturing process, or the subject of manufacturing process. So worker means a person who is employed directly or through any agency. तो एम्प्लॉई जो होते हैं और वर्कर जो होते हैं, एक परमानेंट वर्कर होते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर वर्कर होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर लेबर होते हैं. तो दो टाइप का वर्कर हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयड हुए होंगे और कुछ कॉन्ट्रैक्टर और कुछ एजेंसी के थ्रू एम्प्लॉयड हुए होंगे. ठीक है. With or without knowledge of principal employer, जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर मतलब कौन है? कि एम्प्लॉयर जो कि कंपनी की मालिक होता है. ठीक है. उसकी नॉलेज में हो या विदाउट नॉलेज में हो, जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर होता है कभी उसके नॉलेज में नहीं आते हैं. कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर ही उनका एम्प्लॉयर होता है. ठीक है. नॉलेज में हो या विदाउट नॉलेज में हो, वेदर फॉर वेजेस, वेजेस के लिए वो लोग काम कर रहे हैं. कौन से काम कर रहे हैं? और इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है पता चला अभी? क्या क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो लोग काम कर रहे हैं प्रोसेस के लिए. और इन क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी और प्रेमिसेस, मशीनरी हो या प्रेमिसेस हो, उसी की किसी पार्ट को क्लीनिंग को लेके भी और क्लीनिंग के लिए वो भी एम्प्लॉयड हुए होंगे. और यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इन एनी काइंड ऑफ वर्क incidental और connected with the manufacturing process. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी काम होते हैं कनेक्टेड हो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
सेक्शन 2B रे वाला कौनटा चले जा सेक्शन 2D hazardous process ये अंदर है ये फैक्ट्री है बहुत ज्यादा फैक्ट्री बुक है क्या अभी मतलब नहीं रही हो नहीं उसको थोड़ा रखो मैं बोलती हूँ मोबाइल में बहुत पढ़ाने का सेशन में देखो hazardous process means any process or activity in relation to an industry specified in the first schedule where unless special care is taken special care is taken raw material therein or the intermediate or finished product byproduct waste intermediate or finished product byproduct waste or a effluent thereof byproduct waste or a effluent thereof Section 2A for adult, 2B for adolescent, C for child, then D for young person, E for ठीक है देखो कौन सा है hazardous process नहीं
Where they are of first point, they are of सबसे first point में लिखो cause material impairment to the health of the person, cause material impairment to the health of the person engaged in or connected they are with, engaged in or connected they are with. Second point, result in the pollution of the general environment, provided that the state government by notification in the official gazette comma amend the first schedule by way of addition comma omission or variation of any industry scheduled of section 2CB the schedule of section 2CB. Okay, so hazardous process क्या होता है? Hazardous process means any process or activity in relation to any industry specified in the first schedule where only special care is taken. जहाँ पे कि एक काम होता है जिसके लिए हमें स्पेशल केयर लेना होता है, ठीक है, हमें स्पेशल केयर लेने पड़ता है, ठीक है, उसको हमें hazardous process बोलते हैं. और raw material there in all the intermediate of finished product, by product, waste or excellent there are of जहाँ पे raw material यूज होता है और उसका जो finished product होता है और by product होता है, वो चीज क्या होता है? causes material impairment to the health of the person engaged or connected they are with. वहाँ पे जो मटेरियल होता है, उसी मटेरियल का जो प्रोसेसिंग होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, वो क्या होता है? एक आदमी जो कि उसी काम में कनेक्टेड है और उसी काम को कर रहा है, उसके हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट लाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? hazardous. तो इसी तरह का काम को हमें उसमें कुछ एडिशन करना है, कुछ अच्छा प्रोसेस एडिशन करना है और कुछ प्रोसेस को ओमिट करना है और उसी प्रोसेस में कुछ वेरिएशन करना है, जिसकी वजह से वो hazardous प्रोसेस और hazard नहीं रहेगा, वो क्या नॉर्मल प्रोसेस से हो पाएगा, ठीक है, मुझे वाला है. उसके बाद देखो सेक्शन 11 cleanliness. Section 11. Cleanliness. CLEANLINESS.
factory, should keep the factory free. The owner of the factory should keep the factory clean. Should keep the factory clean and free from. Should keep the factory clean and free from effluents and waste. Free from effluents. EFFLUENTS. Effluents and waste. WASTE. And waste arising from any drain, comma privy, PRIVY, drain का BRAIN, drain, comma privy, PRIVY, privy or other nuisance, 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 or any other nuisance. Necessary arrangement, necessary arrangement should be made. Necessary arrangement should be made to remove the accumulation of dust, DIRT, dust and diffuses from the workplace daily. First point में लिखो, the floor of every workroom is to be cleaned thoroughly. The floor of every workroom is to be cleaned thoroughly at least once in a week. At least once in a week by washing. At least once in a week by washing or any other possible method. By washing or any other possible method. Second point, provision and maintenance of effective drainage system. Effective drainage system, DRAINAGE. Effective drainage system is most where the floor is likely to become wet. Floor is likely To become wet. WET, wet.
while carrying out any manufacturing process. Waste, WET waste, while carrying out any manufacturing process. While carrying out any manufacturing process. Next point. All inside walls and particles. All inside walls and particles. All inside walls and particles. WALLS walls. Walls and particles. Comma roof. ROOFS roof. Comma ceiling. CEILINGS ceiling. Outer wall. Comma gases and staircases. STAIRCASES and staircases shall be changed in a prescribed manner. At least once in every 14 months. At least once in every 14 months. 14 months. Or 14 months. Or repainted and revarnished. Varnished. VARNISHED. Repainted or revarnished at least once in every 3 years. At least once in every 3 years. With washable paint. With washable paint. Full stop. Washable paint, PAINT paint. Full stop. ठीक है. तो क्लीनलीनेस क्या होता है कि जो दीवार होता है, एक जो इंडस्ट्री में जो रूम्स होते हैं, दीवार होते हैं, फ्लोर, सीलिंग, आउटसाइड वॉल, ये सभी जो चीज होते हैं, इसको कैसे हमें क्लीन करना है और कितने दिन में क्या क्या क्लीन करना है. ठीक है. तो द ओनर ऑफ द फैक्ट्री should keep the factory clean and free from effluents and wastes arising from the drain, privy and other nuisance. जो प्राइवी होता है, ड्रेन होता है और अदर कुछ प्रोसेसेस होता है जिसकी वजह से कुछ effluents and waste आता है हमारा क्या वर्क एरिया में, उसको कैसे क्लीन करना है. ठीक है. Necessary arrangements should be made to remove the accumulation of dust and diffuses from the workplace daily. Daily basis जो dust आता है, जो dust आता है और कुछ unwanted things जो आता है, उसको कैसे डेली इकट्ठा करके बाहर लेके फेंकता है, वो अरेंजमेंट हमें डेली करना है. ठीक है. So the floor of every workroom is to be cleaned thoroughly at least once in a week by washing or any other possible method. जो फ्लोर होता है इसको हम डेली बेसिस क्या करेंगे, झाड़ू करेंगे और वीकली उसको डेली सफाई करेंगे. ठीक है. वाटर एंड एनी टाइप ऑफ सोप और क्लॉथ और एनी वॉशिंग फैसिलिटी को यूज करके ये फ्लोर को हमें सफाई करना है. ठीक है. वीकली वंस. Provision and maintenance of effective drainage system is must where the floor is likely to become wet. जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो पे एसी के बाहर जो होता है पानी गिरता है या नहीं फ्लोर में, तो वो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कि फ्लोर वेट होने का चांसेस होता है, फ्लोर गीला होने का चांसेस होता है. इसी तरह से उस प्रोसेस में जहाँ पे कि फ्लोर गीला होने के चांसेस होता है, उसको हमें डेली बेसिस सफाई करना है और उसी गीले जो आता है पानी या कुछ भी एक्सप्लोरेट आता है, उसको हमें डायरेक्टली ड्रेनेज सिस्टम करना चाहिए. ठीक है. उसके बाद फ्लोर इज लाइकली टू बिकम वेट व्हेयर कैरिंग आउट एनी मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ऑल इनसाइड वॉल एंड पार्टीशन, जो वॉल एंड पार्टीशन होता है इस तरह का जो चीज होता है, और रूफ सीलिंग आउटसाइड वॉल ट्रैफिक एंड स्टेयरकेसेस सर्विंग क्लीन इन ए प्रेस्क्राइब्ड मैनर एटलीस्ट वंस इन एवरी 14 मंथ्स। ये जो वॉल होता है, आउटसाइड वॉल होता है, सीलिंग होता है, स्टेयरकेस होता है, गैसेस जो जाने आने के रास्ते होता है, ये सभी को हमें क्या करना चाहिए, 14 मंथ में उसको भी सफाई करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, रीपेंटेड और रीवार्निश, इसको भी रीपेंट और रीवार्निश करना है इन एवरी 3 ईयर्स और उसको वॉशेबल पेंट में पेंट भी करना है। समझ रहे हैं क्लीनिंग कैसे करना है, और तो बहुत सारा चीज है इसमें, सेंटेंस बुक के तो भी पता चलेगा, समझ पा रहे हैं। क्या कहते हैं, वो रीपेंटेड और रीवार्निश। वार्निशिंग पता है ना, वार्निश ना तो कौन है, वार्निश क्या होता है, कलर होता है, पता चला क्या है, एक कलर होता है वार्निश। रीपेंटेड मतलब पेंट हुआ है उसको हम फिर से पेंट करेंगे, उसको रीपेंट बोलते हैं, और वार्निश का कलर जो यूज होता है उसको रीवार्निश बोलते हैं। ठीक है, তাহলে বুঝতে পারলেন কি কি ফ্যাক্টরিয়ালগুলো কোন কোন সেক্টর আছে, সেকশনটা মানে পরে দেখি আপনি দেখতে পাবেন সেকশন বাকি তো তুমি ঠিক করে করতে কোনো ডাউট আছে, কোড আছে সেই যে হাজার কোয়েশ্চন असाइनमेंट करते हैं 15